بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا۔ انڈونیشیا کے سمندر کے اوپر 37,000 فٹ کی بلندی پر برٹش ایئر ویز کا ایک بوئنگ 747-200 طیارہ سکون سے اپنی منزل پرتھ آسٹریلیا کی طرف رواں دواں تھا۔ کیبن میں زیادہ تر مسافر سو چکے تھے، کچھ جاگ رہے تھے اور چند افراد کتابوں میں مگن تھے۔ دور دور تک موسم بالکل صاف تھا اور پائلٹس کو پورا اعتماد تھا کہ ان کی پرواز مکمل طور پر معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہونے لگا جو دنیا کی جدید ترین ایویشن ٹیکنالوجی کو بھی حیرت میں ڈال گیا۔ روشنیوں کی عجیب چمک، کیبن میں پراسرار دھواں اور پھر ایک ایسی خاموشی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ جہاز کے عملے نے ایسی چیزیں دیکھیں جو کسی پائلٹ نے اس سے پہلے نہ دیکھی تھیں، اور پھر ہوا میں معلق 263 جانیں، ایک ایک لمحہ کر کے وقت گزر رہا تھا جیسے وقت تھم چکا ہو۔ کیا یہ ٹیکنیکل خرابی تھی یا کچھ اور بہت پراسرار؟ برٹش ایئر ویز کی یہ پرواز آج بھی پائلٹ ٹریننگ کی کتابوں میں ایک سبق بن کر زندہ ہے۔ یہ صرف ایک ٹیکنیکل خرابی یا موسم کی خرابی کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب جدید ٹیکنالوجی، تجربہ اور انسان کا حوصلہ سب کچھ آزمایا گیا۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ جب آسمان پر ایک محفوظ سمجھے جانے والا جہاز اچانک خاموش ہو گیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آج بھی سائنس اور ایویشن کے ماہرین کے لیے ایک سوال بنا ہوا ہے۔ 24 جون 1982 کو برٹش ایئر ویز کی پرواز اسپیڈ برڈ 9 نے لنڈن ہیتھرو سے براستہ پرتھ میلبورن آسٹریلیا جانے کے لیے ٹیک آف کیا۔ یہ پرواز اپنے شیڈول کے مطابق کوالالمپور ملیشیا سے روانہ ہوئی تھی اور مقررہ وقت پر پرتھ آسٹریلیا میں لینڈ کرنا شیڈیولڈ تھا۔ فلائٹ کو ٹیک آف کیے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مسافر کھانا کھانے کے بعد اپنی نشستوں پر پرسکون انداز میں سونے کی تیاری میں مصروف تھے۔ وہ پہلے ہی 2 ٹائم زون کراس کرنے کے بعد کافی تھک چکے تھے۔ لنڈن ہیتھرو سے روانہ ہونے کے بعد اس فلائٹ نے اپنا پہلا سٹاپ اوور بامبے انڈیا میں کیا تھا۔ اس کے بعد یہ فلائٹ کوالالمپور ملیشیا پہنچی اور پھر شیڈول کے مطابق یہاں سے پرتھ آسٹریلیا جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس پرواز کے کیپٹن 41 سالہ ایرک موڈی تھے، جبکہ فرسٹ آفیسر 32 سالہ راجر گریوز اور فلائٹ انجینئر ہیری فری مین تھے۔ جکارتا انڈونیشیا کے مقامی وقت کے مطابق رات 8:40 پر جب یہ پرواز جاوا کے جنوبی علاقے میں بحر ہند کے اوپر پرواز کر رہی تھی، کیپٹن موڈی نے ہوائی جہاز کے موسمی ویدر ریڈار پر سامنے کے 500 میل کے موسم کا جائزہ لیا۔ ریڈار پر موسم بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا اور پرواز کے پورے راستے کو ہموار اور محفوظ تصور کیا جا رہا تھا۔ کیپٹن نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے فرسٹ آفیسر راجر گریو سے کہا، موسم ٹھیک ہے، پرواز سموتھ رہے گی، لیکن اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ ٹوائلٹ کے لیے کاکپٹ سے باہر چلے گئے۔ جیسے ہی کیپٹن کاکپٹ سے باہر نکلے، فرسٹ آفیسر گریوز نے کاکپٹ کی ونڈ سکرین پر عجیب و غریب پراسرار روشنیاں رقص کرتی ہوئی دیکھیں۔ یہ روشنی ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی برقی طاقت کا اخراج ہو رہا ہو۔ عام طور پر اس قسم کی روشنی، جسے سینٹ ایلموز فائر بھی کہا جاتا ہے، شدید گرج چمک اور آندھی والے موسم میں نظر آتی ہیں، لیکن اس وقت تو موسم بالکل صاف تھا، نہ کوئی بادل، نہ کوئی طوفان، اور پرواز بھی بالکل ہموار انداز میں جاری تھی۔ تو پھر یہ روشنیاں کیسی تھیں؟ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے کو پائلٹ نے احتیاطاً گرج چمک اور طوفانی حالات کے مطابق پرواز کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے تحت اینٹی آئسنگ سسٹم آن کر دیا، اور مسافروں کے لیے نشست پر بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھے رکھنے کی لائٹس بھی آن کر دیں۔ پیچھے کیبن میں بیشتر مسافر سو چکے تھے اور کچھ جاگ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ مسافروں نے اپنے سروں کے اوپر ہلکا ہلکا سا دھواں محسوس کیا۔ ان دنوں فلائٹس میں اسموکنگ کی اجازت تھی۔ کیبن کرو نے بھی یہ دھواں نوٹ کیا اور اس بات کی کھوج لگانے کی کوشش کی کہ یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ آہستہ آہستہ دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔ اس دھوئیں میں ہلکی ہلکی گندھک کی بو بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ کیپٹن جب واپس کاکپٹ میں پہنچے تو انہوں نے ونڈ شیلڈ پر چمکتی پراسرار روشنیاں دیکھیں تو کو پائلٹ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کو پائلٹ نے انہیں بتایا کہ جیسے ہی آپ کاکپٹ سے باہر نکلے تھے تو ونڈ سکرین پر یہ روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید یہ سینٹ ایلموز کی روشنی ہے جو گرج چمک کے طوفان میں نظر آتی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت تو موسم صاف ہے اور ہمارے ویدر ریڈار پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ادھر کیبن میں جن مسافروں کو کھڑکی سے باہر ہوائی جہاز کے انجنز نظر آ رہے تھے، انہوں نے ان انجنز اور پروں کے ارد گرد ایک پراسرار نیلی چمکدار روشنی دیکھی جس نے ہوائی جہاز کے انجنز کو گھیر رکھا تھا۔
चंद ही मिनट के बाद हवाई जहाज का इंजन नंबर 4 फ्लेम आउट हो गया, यानी किसी वजह से बंद हो गया। पायलट्स ने जल्दी जल्दी इंजन नंबर 4 शटडाउन का प्रोसीजर पूरा किया। अगले ही मिनट में इंजन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह बंद हो गया। चंद ही सेकंड्स के बाद इंजन नंबर 1 और 3 भी बंद हो गए। फ्लाइट इंजीनियर की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी, आई डोंट बिलीव इट, चारों इंजन बंद हो गए हैं। फ्लाइट क्रू ने जल्द ही ये कैलकुलेशन कर ली कि बोइंग 747-200 हवाई जहाज चारों इंजन्स के बंद हो जाने के बाद 37,000 फुट की बुलंदी से नीचे ज़मीन या पानी तक पहुंचने में सिर्फ 23 मिनट लेगा और इस दौरान वो सिर्फ 91 नॉटिकल माइल्स का फासला तय कर सकेंगे। इस मौके पर को पायलट ग्रीव्स ने जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल दी। उन्होंने जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि उनके हवाई जहाज के चारों इंजन बंद हो चुके हैं। हवाई जहाज के इर्द गिर्द मौजूद रोशनियों के गुबार ने शायद हवाई जहाज की कम्युनिकेशन और वायरलेस सिस्टम को भी मुतासर किया था। जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उनकी बात समझने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। फिर नज़दीक ही एक फ़्लाइट ने ब्रिटिश एयरवेज की इस फ्लाइट स्पीडबर्ड 9 का मैसेज जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉपी करवाया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर स्क्वाक 7700 ट्रांसमिट करने के लिए कहा। पायलट्स ने कंफर्म किया कि वो पहले ही ये कोड ट्रांसमिट कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें बताया कि वो अपने रेडार पर उन्हें पिक नहीं कर रहे हैं। इस मौके पर कैप्टन ने हवाई जहाज का रुख वापस जकार्ता एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया ताकि वो एयरपोर्ट तक पहुंच सकें और लैंडिंग की कोशिश कर सकें। हवाई जहाज की बुलंदी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। अब जो टाइम बाकी रह गया था उसे नज़र में रखते हुए पायलट्स ने इंजन्स रीस्टार्ट करने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी। उनके पास वक्त बहुत कम रह गया था और वो अंदाज़न सिर्फ 10 मरतबा ही इंजन दोबारा स्टार्ट करने की स्टैंडर्ड कोशिश कर सकते थे। कैप्टन ने बाद में बताया कि उन्होंने इंजन्स रीस्टार्ट करने का मुकम्मल प्रोसीजर छोड़कर मुख्तसर रास्ता अपनाया और जल्दी जल्दी इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश शुरू कर दी और शायद उन्होंने ये कोशिश 50 मरतबा की होगी। उनके मुताबिक सिर्फ यही एक कोशिश थी जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान में उनके लिए उम्मीद की किरण थी। अब कैप्टन के सामने एक और ख़तरनाक सूरत हाल दरपेश थी। वो इंडोनेशिया के जनूबी साहिली पहाड़ी सिलसिले के करीब होते चले जा रहे थे, जिसे महफूज तरीके से क्रॉस करने के लिए उन्हें 12,000 फुट की बुलंदी दरकार थी। लेकिन हवाई जहाज़ की कम होती हुई बुलंदी के बायस कैप्टन ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर वो इस पहाड़ी सिलसिले के ऊपर से क्रॉस करने की पोजीशन में ना हुए तो वो फ़ौरन ही वापस समंदर की तरफ मुड़ जाएंगे और समंदर पर क्रैश लैंडिंग डिचिंग करेंगे। ये एक खौफनाक फ़ैसला था, लेकिन उनके पास कोई दूसरी चॉइस थी ही नहीं। उस वक्त कैप्टन ने मुसाफिरों के लिए एक तारीखी अनाउंसमेंट की, ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। हमें एक बहुत ही छोटा सा मसला दरपेश है। हवाई जहाज़ के चारों इंजन बंद हो चुके हैं। उम्मीद है आप इस वक्त ज़्यादा खौफजदा नहीं होंगे। इसी दौरान कॉकपिट क्रू बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे। गुजरते वक्त के साथ साथ उनके पास वापस मुड़कर समंदर पर क्रैश लैंडिंग करने का ख़तरनाक लम्हा करीब तर आता गया। जब वो वापस मुड़ने के फैसले के बिल्कुल करीब थे तो इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिशों के दौरान इंजन नंबर 4 मध्यम सी आवाज़ के साथ स्टार्ट हो गया। ठीक इसी वक्त कैबिन में ऑक्सीजन प्रेशर कम होने का अलार्म बजना शुरू हो गया। दरअसल इंजन बंद होने के बाद कैबिन प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा था और अब मुसाफिरों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना था। कैबिन में धुएं की मौजूदगी की वजह से पहले ही दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ऊपर से ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम हो गया। मुसाफिरों का बुरा हाल था। उस वक्त कैप्टन ने 10,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचने के लिए बहुत तेज़ी के साथ हवाई जहाज़ को डाइव में डाल दिया, यानी बहुत तेज़ डिसेंड करना शुरू कर दी, क्योंकि 10,000 फुट की बुलंदी पर ऑक्सीजन का दबाव बहाल हो जाना था। इसी दौरान दूसरा इंजन भी स्टार्ट हो गया और अगले चंद सेकंड्स में बाकी दोनों इंजन्स भी हैरत अंगेज तौर पर स्टार्ट हो गए। अब कैप्टन ने हवाई जहाज़ को बुलंदी की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, क्लाइंब शुरू कर दी ताकि वो पहाड़ी सिलसिला क्रॉस करने के बाद जकार्ता एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश कर सकें। जैसे ही हवाई जहाज़ 18,000 फुट की बुलंदी से ऊपर पहुंचा तो कॉकपिट की विंडशील्ड पर नीली चमकती पुरस्कार रोशनियां दोबारा नमूदार हो गईं। इसी दौरान इंजन नंबर 4 फिर बंद हो गया। कैप्टन ने फौरन इस इंजन को शट डाउन किया और अपनी बुलंदी भी कम की ताकि वो इस पुरस्कार रोशनियों के हसार से बाहर निकल सके। अब हवाई जहाज़ अपनी बुलंदी मेंटेन करते हुए जकार्ता के हवाई अड्डे की तरफ लैंडिंग के लिए अपनी पोजीशन बना रहा था, लेकिन अभी पायलट्स का इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था।
नीली रोशनियों ने कॉकपिट की विंडशील्ड को बहुत बुरी तरह रगड़ कर रख दिया था और अब पायलट्स को इस विंडशील्ड के बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब वो सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट्स आलात की मदद से हवाई जहाज़ को उड़ा रहे थे। जब हवाई जहाज़ जकार्ता एयरपोर्ट पर लैंडिंग के नज़दीक पहुंचा तो हवाई जहाज़ में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम में से हवाई जहाज़ की बुलंदी दिखाने वाला हिस्सा नाकारा हो गया। ग्लाइड स्लोप इनऑपरेटिव हो गई। अब कैप्टन हवाई जहाज़ को रनवे की सीध में तो रख सकता था, लेकिन वो ज़मीन से कितना ऊपर था उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। उस वक्त को पायलट ने टच डाउन से अपने फासले के मुताबिक पायलट को हवाई जहाज़ की बुलंदी बताना शुरू की और कैप्टन ने आहिस्ता आहिस्ता हवाई जहाज़ को रनवे पर टच डाउन के लिए नीचे लाना शुरू कर दिया। कैप्टन को अपने सामने विंडशील्ड के एक कोने में से रनवे पर लगी हुई रोशनियां मध्यम सी दिखाई दे रही थीं। वो अपनी नज़रें इन रोशनियों पर जमाए हुए हवाई जहाज़ को नीचे लाता गया और जब को पायलट ने उसे कॉल दी कि अब वो टच डाउन से सिर्फ 50 फुट की बुलंदी पर हैं, तो उसने हवाई जहाज़ को लैंडिंग मोड में डाल दिया और हल्के से झटके के साथ हवाई जहाज़ रनवे पर उतर गया। केबिन में बैठे मुसाफिर रनवे पर टच डाउन महसूस करने के बाद हैरत और खुशी से चिल्ला उठे और रोना शुरू कर दिया। ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ स्पीडबर्ड 9 बाहिफाजत रनवे पर उतर चुकी थी। एक भयानक ख्वाब ख़त्म हुआ। अब पायलट्स को एक और फिक्र थी कि कहीं उनकी किसी गलती की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। अगली सुबह जब वो हवाई जहाज़ देखने के लिए एयरपोर्ट वापस पहुंचे तो उन्होंने नोट किया कि हवाई जहाज़ की लीडिंग एजेस बुरी तरह रगड़े हुए हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे किसी ने बारीक रेगमार से उन्हें अच्छी तरह रगड़ा हो। अब इस हादसे की तहकीक का बाकायदा आगाज़ हो चुका था और वक्त आ गया था कि उन तमाम पुरस्कार वाक़यात से पर्दा उठाया जाए जिन्होंने इस परवाज़ को तारीख़ का एक नाकाबिले फरामोश वाक़या बना दिया था। तहकीकात के शुरू में ही ये पता चल गया कि इंडोनेशिया में एक आतिशफ़शां फटा था जिसकी कोई वार्निंग नहीं थी। इस आतिशफ़शां के फटने से वोल्केनिक ऐश यानी आतिशफ़शां की राख जो इंतहाई हल्की और बारीक होती है कई हज़ार फुट की बुलंदी तक गई। बाद में हवा के दोष पर यह राख दूर दराज इलाके में फैल गई। ब्रिटिश एयरवेज की यह परवाज़ बोइंग 747 इस आतिशफ़शां राख में घुस गई। तेज़ी से उड़ते हुए हवाई जहाज़ की सतह पर जब ये राख टकराती तो उससे बिजली की लहरों जैसी कैफियत पैदा होती जिसने पूरे हवाई जहाज़ को अपनी लपेट में ले लिया था, जो लोगों ने हवाई जहाज़ की खिड़कियों में से नीली रोशनियों के हिसार की सूरत में देखा। यही वो पुरस्कार रोशनियाँ थीं जो कॉकपिट की विंडशील्ड पर भी नज़र आती रही थीं। कॉकपिट की विंडशील्ड पर इस राख की बम्बार्डमेंट की वजह से कॉकपिट के शीशे बुरी तरह सैंड ब्लास्टिंग के अंदाज में अंधे हो चुके थे। यही राख हवाई जहाज़ के इंजन्स के अंदर भी चली गई और इंजन में मौजूद बहुत हाई टेम्परेचर पर पिघल कर एक माया की सूरत में इंजन की अंदरूनी जालियों पर चिपक गई, जिसके बायस इंजन चोक होकर बंद हो गए। लेकिन बंद होने के बाद जैसे जैसे इंजन्स ठंडे होते गए, इंजन्स की अंदरूनी सतह पर चिपकी हुई राख टूटकर इंजन की जालियों से हटने लगी। यही वजह थी कि पायलट्स के इंजन स्टार्ट करने की बार बार कोशिशों पर आखिरकार इंजन स्टार्ट होना शुरू हो गए। मैंने जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अपना करियर का आगाज़ किया, लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर में मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे इस इम्पॉर्टेंट एमरजेंसी के बारे में बताया था कि जब भी कभी किसी जगह पर आतिशफ़शां के फटने की कोई इतला मिले यानी नोटैम मिले या नोटिस मिले तो उसे बहुत सीरियस लें और इंश्योर करें कि हर हवाई जहाज़ के पास जो उस तरफ को जा रहे हों ये इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। मुझे ये भी बताया गया था कि इस तरह की एयर स्पेस को बंद कर दिया जाता है जहाँ पर इस राख के मौजूद होने का ज़रा सा भी इम्कान हो। बिल्कुल इसी तरह इंडोनेशिया की एयर स्पेस भी बंद कर दी गई थी, जो कुछ रोज़ बंद रहने के बाद दोबारा खोल दी गई। मुसाफिरों को कई रोज़ इंडोनेशिया में आरामदेह होटल्स में रखा गया और उन्हें इंडोनेशिया में खूब सैर व तफरी करवाई गई। बाद में ब्रिटिश एयरवेज के एक दूसरे हवाई जहाज़ पर उन्हें अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना कर दिया गया। इस वाक़े के बाद आलमी सतह पर हवाबाजी के ज़वाबित और तरबियती प्रोग्राम्स में तब्दीलियाँ की गईं। पायलट्स को ये सिखाया गया कि राख के बादल में परवाज़ के दौरान की क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं, जैसे कि कैबिन में सल्फ़र की बू, सेंट एल्मोस फायर और कैबिन में गैर मामूली धुआं। एयरलाइन और जियोलॉजिस्ट के दरमियान रवाबित को भी बेहतर किया गया ताकि इस किस्म की वोल्केनिक एक्टिविटी की फौरी इतला दी जा सके। इस वाक़े ने ना सिर्फ हवाबाजी बल्कि इंसानी नफ्सियात पर भी गहरा असर डाला। मुसाफिरों ने बयान दिया कि वो मरने के लिए तैयार हो चुके थे और ज़िंदगी की कदर इसके बाद कहीं बढ़ गई। कुछ अफराद ने अपनी यादों को किताब की सूरत दे दी,
کچھ نے اسی پرواز میں اپنے جیون ساتھی سے رشتہ جوڑ لیا۔ کیپٹن موڈی نے ایک گلائیڈنگ کلب بنایا جس میں اس نے اس پرواز کے تمام مسافروں اور عملے کو تا حیات ممبرشپ دی۔ برٹش ایئر ویز کی فلائٹ سپیڈ برڈ 9 ایک عام پرواز تھی جو ایک غیر معمولی صورتحال کا شکار ہو گئی۔ فطرت کی طاقت کے سامنے انسانی عقل، مہارت اور حوصلے نے جس طرح سے مقابلہ کیا وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ یہ واقعہ نہ صرف ہوا بازی کی دنیا کے لیے سبق ہے بلکہ زندگی سے جڑے ہر انسان کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے کہ کبھی بھی ہار نہ مانی جائے۔ امید اور حوصلہ انسان کو ان بلندیوں تک لے جا سکتا ہے جہاں معجزے ممکن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔